Okay, so what all things have we covered in previous classes? Yes, anybody? Anisha, would you like to go ahead? Good morning, sir. Yeah, Achal. Sir, for both the days, day 15 and day 16 also. Any day, last day, day 16. If you are okay with day 15 and 16, you can go ahead. Wow. Sir, I have attended day 15 and day 16, but some of the parts are remaining because we had our exams. So I can explain day 15 and like Yeah, both. sure. Go ahead. Okay, sir, on day 15, we first learned the basics and all the definitions about AWS DevOps, all the process like what we do, code test, QA, UAT, and product, what is UAT. And then we learned about what is code commit. Basically, it's a version control system. And it's like GitHub, whatever we do in GitHub, it is fully managed, highly available by AWS. Then we also learned that uh, it is integrated with code build Jenkins, and then we followed some steps to do it in AWS console, like how to create a repository in code commit, general how to set credentials in IAM, and then like how to use it in VS Code to clone the HTTP, and uh, we we made a group of like DevOps junior, and then we set some permissions of read-only access in which we cannot push, we can only pull the code. So we learned all of that, and then as we created AWS chatbot, then Slack, then we configure client, then we configure new channel, we created channel in Slack, added it, created it, and then in code commit settings, notification, how to create notification rule. Then we learned about code build, how allows, like it allowed to build our code. We set some configuration, we set environment, then we learned the whole steps, like how it works as a developer. First step is like committing code, then we set CloudWatch event, then AWS Lambda, then code build, then again CloudWatch event, then AWS Lambda, and at end we as a result we get success or fail, and code and this process again goes to code commit, and as a we can merge or close pull requests to know to end this process. So we also done all the steps for the code build and created Lambda function. In that we created two file, index.js, package.json. We done all the configurations, set it general configuration, time setup, permissions. We added permission, we added role user. Then we have set environment variables, in which we have set all the key and value pairs. Then we have made two code build. One is code build start file, and this is code build result. So we have set environment variables for both of them. Then we have to attach CloudWatch event. We have done that. We have created rule for that also. First we have created rule for trigger code build start, then for trigger validate code build result. Then we have pulled some request and checked it by
merging it and closing all the pull requests. Then on day 16, we have done learned more about code deployment. If we have EC2 instances and codes are available, then how to deploy code from there. And if we have, sir also told us to do some tasks for like CI/CD pipeline and integrated using ECS, and steps to follow for EC2 instances, where EC2 instances deploy with an IAM role, install code, deploy agent in EC2 server, agent continuously polling AWS code deploy for work to do, then code deploy sends app spec.yml file, and the app is pulled from any source, GitHub or S3. EC2 will run deployment instruction, and code deploy will know that deployment was successful or failure. And then we followed all the steps, like how to do the setups. And then after that, we have done it with ECR, ECS, and as I said about CI/CD pipeline combined with ECS, in that we can make a repository first, then we can do that continuous integration. Like whenever changes are pushed to like code repository, the CI systems, Jenkins and all triggers a build process. Then we learned about artifact storage, such as Docker images are stored in an artifact repository. Then continuous deployment, CI system triggers a deployment process to ECS, then ECS cluster, then services starts deployment, and at end monitoring. Yeah, thank you so much, Chavi. So yeah, that is what we have covered. And yes, that is going to take time. When I talk about the CI/CD, AWS DevOps, so I see only few guys have done the assignment. They have shared that with me. And this time, I'm seeing some new faces. So that is really a very great thing. So I am expecting few more people will be coming up, and they will be doing the things. ओके तो चलेगा AWS DevOps से रिलेटेड जो जो चीजें जरूरत था, the fundamentals, how do we generally work into industry, what all services are actually used, so all those things was covered. अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कुबरनेटिस पार्ट. थोड़ा कुबरनेटिस के बारे समझेंगे और डिटेल्ड में समझेंगे कि व्हाट कुबरनेटिस इज, क्योंकि मार्केट में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, we don't have any resources with respect to Kubernetes. See, Kubernetes के बारे थोड़ा history पढ़ाएंगे हम. I will be talking about the history of Kubernetes. But this Kubernetes was launched, very recently, maybe around 9 years back in 2014. Okay, 2014 it was launched into the market, and that's the reason why we don't have lots of experienced guy onto this. अब 2014 में यूज आया है, so it will be taking some time to get into the market, right? धीरे धीरे 2-4 साल लगा इसको मार्केट में आने के लिए, एंड देन यू कैन एज्यूम कि फुल फ्लेजेडली वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू दिस फ्रॉम 2017 मे बी. ओके, एंड देन अभी 2017 से मे बी इट इज अराउंड 6 years, 5 to 6 years, राइट? सो अभी तक मार्केट में वी डोंट हैव वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज हु हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन टू दिस पार्ट. बट यस, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वी आर ऑल्सो लर्निंग, एंड जिसको इसका नॉलेज है एंड दोज हु हैव सर्टिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो दे विल बी वैल्यूड अ लॉट इनटू इंडस्ट्री. ओके, एंड अभी क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाई इज द डिमांड ऑफ कुबरनेटिस इज इनटू द मार्केट, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट. ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग सेटअप्स करके देखेंगे, हाउ डू वी जनरली डू द सेटअप, एंड वी हैव कवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज EKS. मार्केट में इफ यू टॉक अबाउट इट, बहुत बड़े बड़े कंपनी है दिस डेज, आई एम सेइंग they are onboarding the projects, and international clients उनके पास with respect to doing the projects of this particular Kubernetes based environment उनको set up करना है, and they want to deploy their application onto that, but they don't have any resources, so they are also coming to us. They are outsourcing few guys for few months so that they will be able to deploy this
containerized based solution, Kubernetes को use करके they will be able to deploy their application. So ऐसे भी हो रहा है, and we have got few projects recently into this month also, because we have in-house expertise when it comes to Kubernetes. Okay, so I will be taking few parts when it comes to Kubernetes, only Kubernetes, and then I will be calling up the other guys who are expert into this part, those who actually take care about EKS into industry. So he will be coming, and again he will be sharing more insights onto that. How do we generally deploy that? So generally what we have done, recently we have got some of the projects, and with respect to that projects, whatever thing which was important, which was necessary, जैसे कि आप देखो एक अगर पाइथन का प्रोजेक्ट कर लोगे ना, तो पाइथन का प्रोजेक्ट जब कर लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें से क्या क्या टॉपिक है विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट वन। हो सकता है कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हो उसमें ये तो यूज होंगे ही होंगे, एडिशन ऑफ वन और टू एक्स्ट्रा थिंग्स विल बी देयर, तो वो होगा। सो अभी हम लोग का जो भी एक्सपीरियंस है विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर थिंग्स वी हैव डिप्लॉयड इनटू द कस्टमर एनवायरनमेंट, तो उससे रिलेटेड वट एवर थिंग इज इम्पोर्टेंट, सो दैट वी आर गोइंग टू टीच यू इनटू द कुबरनेटिस सेक्शन। ओके, एंड देन धीरे धीरे यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टू द प्रोजेक्ट। एक चीज होगा कि दिस कैन लुक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, okay, but I'll try to make it very very simple, try to make you understand in a better way, and धीरे धीरे एक लैब को if you are doing it for the 4 times, then definitely everything will be sorted for you, ठीक है, but you have to be patient, you have to be consistent। okay, थोड़ा सा समझो regarding Kubernetes, and then Kubernetes का सारा section I will be covering, the EKS part, which will be mostly starting from this Friday, I guess. Okay, EKS part जो this Friday so we will be starting, so that will be taken care by some other resources। ठीक है, तो चलो let us try to get deep dive into your Kubernetes part। तो सबसे पहले समझते हैं कि what is Kubernetes। okay, Kubernetes के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, and then we will be trying to understand about the history of Kubernetes, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, all those steps। So what is Kubernetes? तो कोई Kubernetes बोलता है, कोई Kubernetes बोलता है, it depends, right? काम फंडामेंटल वही होगा, नेमिंग कोई किसी को कुछ बोल देंगे, कोई किसी को कुछ बोल देंगे, whatever you feel like you can speak। ठीक है, तो अभी देखो I generally call it as a Kubernetes। ठीक है, so what is Kubernetes? Let us try to understand in depth, and then उसके बाद फिर जा करके हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो। So what is this Kubernetes? So if I'll talk about Kubernetes, so Kubernetes is an open source orchestration tool developed by Google to manage microservices or containerized application। across a distributed cluster of nodes। देखो ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और भी लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग समथिंग मोर अबाउट इट। ठीक है, एंड देन वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, एक एक टर्म को इसमें समझेंगे, एंड यू विल गेट द एंटायर आइडिया। ठीक है, सो
यहाँ पे maybe I can cover that into the theoretical part. Let the Kubernetes or definition be with this only. Okay. So अब Kubernetes क्या है? तो I am saying Kubernetes is an open source orchestration tool developed by Google to manage microservices and containerized based application across the distributed cluster of nodes. ये तो हो गया definition. ठीक है. अब चलो इसका actual meaning को समझते हैं. यहाँ पे ना एक चीज पहले देखो, पहले समझो कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि developed by Google to manage microservices or containerized based application. Now, what is this? What is microservices? What is containerized based application? Let us try to understand this first. उसके बाद हमको ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस समझ में आ जाएगा. ओके तो देखो जब क्या था ना, हमारे पास कुबरनेटिस वगैरह नहीं था. ओके जब हमारे पास कुबरनेटिस नहीं था तो क्या करते थे, डेवलपर लोग अपना स्क्रिप्ट लिखते थे. वी हैव डेवलपर 1 एंड वी हैव डेवलपर 2. ये लोग क्या करती है, अपना एक स्क्रिप्ट लिखा. सपोज जावा में एक स्क्रिप्ट लिखे एंड देन दे हैव बिल्ड दिस. एंड जावा में बिल्ड करने के बाद ये एक वॉर फाइल बनाए, और वाइल वॉर फाइल बना करके ये लोग क्या करते थे, एक सर्वर लेते थे और ये सर्वर पे ये फाइल को डिप्लॉय करते. एंड देन फिर हम लोग इसके आईपी को हिट करते थे एंड देन वी यूज्ड टू गेट द रिस्पॉन्स. तो ये अभी भी हो रहा है. Okay, this is still in the phase, but yes, अभी आगे अगर IT इंडस्ट्री में you have to survive for the next 10 years, then you have to know about Kubernetes. अब ये देखो जनरली हुआ क्या, सपोज करो मेरा एक ERP सिस्टम which is actually handling the entire data for your college. एक ERP सिस्टम है एंड वो ERP सिस्टम में क्या हो रहा है कि वी हैव वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि अब वहां पे एक फी पेमेंट का सेक्शन है, राइट. फी पेमेंट फॉर यू गाइस. ओके हमारा भी जब ईआरपी था तो वहां पे फी पेमेंट का सिस्टम था. हमारे पास एक फैकल्टी एडवाइजर का सेक्शन था, एफए वी यूज्ड टू कॉल. उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस का एक सेक्शन था, अटेंडेंस का एक सेक्शन था. तो अब जनरली होता क्या था ना कि जब हमारे पास ये कुबरनेटिस का सॉल्यूशन नहीं था तो डेवलपर लोग क्या करते थे, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखते थे एंड वो स्क्रिप्ट में सारे फंक्शनैलिटी को ऐड करनी. ओके मतलब एक मेरा पूरा कंप्लीट स्क्रिप्ट होता था, ये स्क्रिप्ट में सारे फंक्शनैलिटी ऐड कर देते थे. एंड ऐड करने के बाद फिर ये क्या करते थे, इसको बिल्ड करते थे एंड उसके बाद फिर जाकर के हम लोग अपने EC2 इंस्टेंसेस में, अपने सर्वर्स में ये स्क्रिप्ट को ले जाकर के रख देते थे EC2 इंस्टेंसेस वगैरह में. एंड देन फिर क्या होता था, इसके आईपी को हिट करते थे, हम लोग को रिस्पॉन्स वगैरह मिल जाता. दैट वाज फाइन. बट अभी ना इसका कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है. अब ड्रॉबैक्स कैसे है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी जो भी एप्लीकेशन डिजाइन होता है ना, दोज आर डिजाइन बेस्ड ऑन टू द माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर. माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर. और इस टाइप का आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ओके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बेस्ड सॉल्यूशन हम लोग इसको बोलते थे, जहां पे क्या करते थे, मेरे को जितने भी सर्विसेज चाहिए होते थे, जो भी एप्लीकेशन डेवलपर होते थे, वो लोग क्या करते थे, सारे सर्विसेज को, सारे जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसको क्या करते थे, वो सिंगल फाइल में लिखते थे. एंड ऑल दोस फाइल मे बी डिफरेंट मॉड्यूल्स होता था वहां पे, एंड दे यूज्ड टू कॉल देम इनटू अ सिंगल फाइल. उसके बाद फिर जाकर के हम लोग उसको बिल्ड करते थे एंड देन वी यूज्ड टू पुट दैट इनटू अ सिंगल सर्वर. अब फिर यहाँ पे क्या होता था, सपोज यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन का सारा डेटा रख दिए या वट एवर इज रिक्वायर्ड, फिर इसको एक कनेक्ट कर देते थे हम लोग डेटाबेस के साथ. डेटाबेस के साथ इसको एक कनेक्टिविटी हम लोग कर देते थे. ओके एंड देन इट वाज डन. अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती. सपोज देयर वाज सम इशू विद रिस्पेक्ट टू योर फी पेमेंट. ओके कुछ फी पेमेंट में कुछ एप्लीकेशन बग है, कुछ इशू हुआ है. तो जब ये फी पेमेंट में इशू होगा ना, तो फिर माय इंटायर एप्लीकेशन विल बी डाउन. क्यों? अभी देखोगे ना, कभी कभी 403 404 का इश्यूज आ जाते हैं. वेन एवर यू आर लोडिंग द साइट, कभी कभी ये इश्यूज आ जाते हैं. इट मीन्स योर एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेसिबल. नॉट एक्सेसिबल का मतलब क्या होगा कि कभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कि हो सकता है फी पेमेंट में कुछ इश्यूज हो गए जिसके कारण मेरा पूरा एप्लीकेशन डाउन. देयर आर सिचुएशंस लाइक दैट. तो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर होता था उसको हम लोग बोलते थे मोनोलिथिक बेस्ड आर्किटेक्चर, जहां पे हम लोग सारे सर्विसेज को एक ही साथ क्लब करके एक ही प्रोग्राम उसका बनाते थे एंड देन वी यूज्ड टू बिल्ड दैट. एंड वो पूरा चीजों को हम लोग किस में रखते थे, EC2 इंस्टेंसेस में रखते थे. अब कल के दिनों मान लो ये सर्वर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यू हो गया, मेरा इंटायर थिंग विल बी डाउन. मेरा इंटायर थिंग विल बी डाउन, राइट. अब देखो कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता था कि अब मान लो
अब हम क्या करने लगे ना, हम बोले कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, हम लोग छोटा छोटा एप्लीकेशन बनाते हैं। हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक अलग अलग स्क्रिप्ट लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, ये इसी जो इंस्टेंस की जगह, मेरे को तो अब ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन सपोज 8 GB का मेमोरी मेरे को मिला हुआ है, और मेरा ये पूरा पूरा एप्लीकेशन ही मेरा 2 GB का केवल मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, राइट? तो दिस इज नॉट अ रिसोर्स इंटेंसिव टास्क फॉर। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तब मार्केट में क्या आया, डॉकर है, राइट? तो डॉकर में हम लोग क्या करने लगे, हम लोग कंटेनर्स बनाने लगे। अब यहाँ पे क्या होता था कि सपोज मेरे पास अगर फैकल्टी एडवाइजर का एक सेक्शन डाला, तो अभी एप्लीकेशन डेवलपर भी माइक्रो सर्विसेज पे काम करता है। अब वो लोग क्या करते हैं, ये पूरा एप्लीकेशन को ना स्प्लिट कर देते हैं इनटू मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज। अब एक माइक्रो सर्विसेज में मेरा फी पेमेंट का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, एक में मेरा फैकल्टी एडवाइजरी का एक स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, एक में अटेंडेंस का लिखा जाएगा। एवरीथिंग विल बी देयर। अब देखो, ये जो अटेंडेंस वाला सेक्शन होगा, इसमें डेली डेली डेटा अपडेट होगा, राइट? सो वी नीड अ हाई एंड डेटाबेस। सपोज हाई एंड डेटाबेस मेरे को चाहिए, किसके लिए, अटेंडेंस की। फी पेमेंट में मंथली सपोज एक बार यूज होगा, राइट? तो इसके लिए मेरे को थोड़ा लो वेट वाला भी डेटाबेस चलेगा, तो दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। यहाँ पे फैकल्टी एडवाइजर इसमें मेरे को चाहिए। बट अगर सपोज करो मेरा अगर इंटायर एप्लीकेशन है और ये सबको क्लब करके मोनोलिथिक बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनाया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे के लिए एक ही डेटाबेस रखेंगे। कल के दिनों मान लो अटेंडेंस के कारण मेरा मतलब हैवी ट्रैफिक गया, और वहां पे हम लोग बहुत सारा रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ इशू हो गया, ओके, कुछ इशू हो गया अटेंडेंस के साथ, तो भाई अटेंडेंस के साथ कुछ इशू हो गया, मेरा पूरा डेटाबेस डाउन। सो दिस इज नॉट अ सुटेबल सॉल्यूशन, ऑल्दो दिस इज फाइन फॉर द बिगिनिंग पर्पस। थोड़ा बिगिनिंग के लिए ये सही है, चलो ठीक है, हमारे पास वी आर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, तो चलेगा। बट अभी इंडस्ट्री जो है ना पूरा मूव कर गया है इनटू योर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर। अभी देखो रिसेंटली आई वाज ऑनबोर्डेड टू अ कंपनी जहाँ पे आई एम करंटली वर्किंग। तो वहाँ पे क्या किया था, दे हैव आल्सो डिजाइन्ड देयर एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू योर मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर। अब वहाँ पे ना मेरे को they have said to select the text resign. So when you will be working into industry, they will be telling you to select the text resign. So बहुत सारे text resign है, old text resign है, new text resign. So हर एक का tax calculations का percentage different है. I am not going to get into that. ठीक है? तो generally क्या था कि वहाँ पे भी multiple sections available थे. Sections में जैसे कि if I'll show you, I cannot show you here, but वहां पे क्या होते थे, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे एक पेरोल का सेक्शन होता है, ओके, एंड एक सेक्शन होता है सपोज यूजर का, मतलब कि यूजर का एक सेक्शन होता है। जैसे मेरा एक वहां पे सेक्शन होगा जहाँ पे मेरा पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा माई पासपोर्ट, एवरीथिंग विल बी फेड ओवर देयर। मेरा पेरोल का सेक्शन होगा, मेरा एक मेडिकल इंश्योरेंस का पॉलिसी एक एक होगा ऑप्शन वहां पे। सो मे बी आई कैन कंसिडर दिस एज एन इंश्योरेंस, ओके, इंश्योरेंस। एंड बाय मिस्टेक व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे ना मेरा एक यूजर का जो सेक्शन था, वहां पे दे हैव पुट माय रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो फिर आई हैव रेज्ड अ टिकट कि भाई मेरा रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे दे हैव अपडेटेड इनटू द यूजर सेक्शन, ओके। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई हैव रिकॉग्नाइज्ड कि जो इंश्योरेंस वाला सेक्शन है ना, वहां पर दे आर फेचिंग डेटा फ्रॉम वेयर आई डोंट नो, बट स्टिल देयर आई एम हैविंग माय रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ व्हिच वाज अर्लियर फेड। तो फिर अभी फिर से मेरे को उनको बोलना पड़ा कि यार यहाँ पर भी मेरे को अपडेट करके दो। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, यहाँ पे क्यों ये लोग को हर एक लेवल पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव डिजाइन दोज एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो सर्विसेज। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास फैकल्टी एडवाइजर वाला सेक्शन है, इफ यू हैव फी पेमेंट सेक्शन या फिर हैव अटेंडेंस सेक्शन, एंड दिस अटेंडेंस रिक्वायर्स अ हाई एंड डेटाबेस एंड फी पेमेंट रिक्वायर्स लो डेटाबेस, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फैकल्टी एडवाइजर वाला को डेटाबेस ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हम होल टुगेदर एक साथ क्लब करके क्या करते रहे, अपने EC2 इंस्टेंस में रखते रहे, उसके साथ एक डेटाबेस को कनेक्ट करते रहे। कल के दिनों अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं हम इनटू माय फैकल्टी एडवाइजरी सेक्शन, और उसके कारण कुछ भी इम्पैक्ट हो जाता है, मेरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है, तो माय इंटायर एप्लीकेशन विल बी डाउन। एक बार रिसेंट में इनटू आवर कॉलेज ओनली देयर वाज सम इशू विद सम सॉर्ट्स ऑफ फी पेमेंट सेक्शन, ओके। वहां पे सबका पेमेंट 0000 हो गया था,
Okay, but they have recovered that, but still we were able to check our attendance section, still we were able to check our faculty advisory section, बाकी का और भी section जो भी था, we were able to access that. So there was issue with the fee payment, but other were working perfectly fine. Okay, जैसे कि यहाँ पे payroll और user was working perfectly fine for me, but there was an issue with the insurance data. So अभी अगर कुछ इशू होता है इसमें भी ना, तो ये सब इम्पैक्ट नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. बट इस केस में मोनोलिथिक बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होगा, अगर मेरा इशू एक में होगा ना, ये सब में इशू आ जाएगा, मीन्स योर एप्लीकेशन विल बी एंटायरली डाउन. बट अभी क्या होता है, अभी हम चाहते हैं ऐसा कि चलो अभी जो भी एप्लीकेशन देखोगे ना, व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट आल्सो, कभी भी वेबसाइट को हिट करो तो देयर विल बी सर्टेन सेक्शन जो काम कर रहा है परफेक्टली वर्किंग फाइन, देयर विल बी सम सेक्शन व्हिच इज नॉट एक्चुअली वर्किंग. So it is because that is designed with respect to your microservices based architecture. तो वहां पे क्या होता है, हम लोग जितने भी सर्विसेज होते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं और इसका अलग अलग स्क्रिप्टिंग लिखते हैं. एंड हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लो इसको डिप्लॉय करने के लिए इस पे मेरे ज्यादा हिट्स नहीं हो. ओके, सो दिस डज नॉट रिक्वायर्ड अ वेरी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, कंटेनर डिप्लॉय कर देते हैं, कंटेनर में ये एप्लीकेशन को डाल देंगे, जो भी माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे एफए के लिए, ये यहाँ पे हम डाल देंगे. अगर इसको एक डेटाबेस चाहिए तो चलो ठीक है, एक छोटा सा हम डेटाबेस कंटेनर भी एलोकेट कर देंगे. फी पेमेंट है, फी पेमेंट में मेरे को थोड़ा हाई एंड डेटाबेस चाहिए, इसके बेस्ड इसके जो एप्लीकेशन होंगे, जो भी डिजाइन किया गया होगा माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन, उसको हम ये कंटेनर पे डिप्लॉय कर देंगे. एंड देन अगेन आई विल बी अटैचिंग अ डेटाबेस टू. अगेन फिर अटेंडेंस के लिए सेम थिंग हम लोग करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डालेंगे इनटू माय कंटेनर. एंड इसके लिए मेरे को हाई एंड डेटाबेस चाहिए, हम हाई एंड डेटाबेस यहाँ पे लगा देंगे. ओके, कल के दिनों अगर मान लो मेरे को फी पेमेंट्स ट्रांजेक्शन जाना होगा, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, ये कंटेनर को स्केल करेंगे. राइट, अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे था, ये स्केलिंग का अभी बात मत करो यहाँ पे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर पे आ गए. we have your containers and we have your respective databases. कल के दिनों मेरे को चाहिए कि नहीं, ये डेटाबेस को केवल मेरे को चेंज करना है या अटेंडेंस का सेक्शन को चेंज करना है, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो टू दिस कंटेनर और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन चेंजेस करने हैं उसको हम करेंगे. कल के दिनों यहाँ पे कुछ इश्यू हो जाता है तो दिस टू आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड. राइट, तो अभी हाईली स्केलेबल सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना है, सो वी हैव टू फॉलो योर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सॉल्यूशन. अभी जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है, आइदर यू टॉक अबाउट जियो सिनेमा या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, you can assume everywhere they are using this Kubernetes. Everywhere Kubernetes is getting used. क्यों? क्योंकि अभी सारे एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सॉल्यूशंस पे हैं एंड उसको डिप्लॉय करने के लिए वी नीड कंटेनर्स बेस्ड सॉल्यूशन. अब ये कंटेनर्स के लिए तो चलो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोवाइडर्स इनटू मार्केट. जैसे कि हमारे पास कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है, वी हैव योर डॉकर. डॉकर हम लोग को डॉकर इंजन देता है जिसके थ्रू हम लोग कंटेनर्स वी कैन डिप्लॉय इट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंटेनर डी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रॉकेट एज वेल. सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है जो कि मेरे को कंटेनराइज बेस्ड एनवायरनमेंट बना के दे सकते हैं, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड आई कैन बेसिकली स्केल माई एप्लीकेशन. अब यहाँ पे अभी भी एक चैलेंज था. तो हम माइक्रो सर्विसेज तो समझ गए कि हर एक सर्विसेज को स्प्लिट कर करके हम लोग एक अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे और हर एक सर्विसेज के लिए हम लोग अपना एक एक कंटेनर्स देंगे. एंड उसके बाद फिर जाकर के हर एक कंटेनर्स को अगर डेटाबेस चाहिए होगा तो उसको भी हम लोग डेटाबेस देंगे. ओके, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यू कैन पुल आई इमेज फ्रॉम योर डॉकर हब एंड उस पे हम लोग काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. या फिर हम लोग अपना डॉकर फाइल लिख करके खुद से ही उस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं एंड दैट इज इट. राइट, अब लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम होने लगा कि चलो ठीक है, मेरे पास कंटेनर का सॉल्यूशन तो आ गया. अब एक साथ हम बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी मेरे पास ना बहुत ज्यादा हिट हो गया, मेरे वेबसाइट में बहुत ज्यादा हिट है एंड एवरीबडी इज डूइंग द फी पेमेंट. सपोज ये एग्जाम नजदीक आने वाला है एंड यू नीड टू गेट एन दिस एडमिट कार्ड. जब एडमिट कार्ड चाहिए तो बहुत लोग होते हैं क्या कि दे वेट फॉर द लास्ट टाइम जब फी को पे कर सके. जनरली पीपल डू दैट कि लास्ट जिस दिन डे होगा उसी दिन आई विल बी डूइंग द पेमेंट. या फिर कोई एक गवर्नमेंट का भी वेबसाइट होता है जहाँ पे इफ यू हैव टू डू सम सॉर्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर भी क्या होता है कि लास्ट डे में लोग जाते हैं एंड यूजुअली इट हैपेंस कि वेबसाइट क्रैश हो जाए बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दिस माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर, जहां पे वो ऑटोमेटिकली सारे चीजों को स्केल अप कर ले विद इन फ्यू सेकेंड्स.
तो यहाँ पर भी स्केलेबिलिटी है। यहाँ पे स्केलेबिलिटी हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? अगर सपोज करो मेरे को फी पेमेंट करना है एंड अचानक से मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, सो आई नीड टू स्पिन अप मल्टीपल कंटेनर्स, राइट? अब जैसे कि मान लो मेरे पास EC2 इंस्टेंसेस वगैरह है, अगर ये EC2 इंस्टेंस पे मल्टीपल हिट्स आ रहे तो इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर देंगे, फिर लोड बैलेंसर लगा देंगे एंड सबको कनेक्ट कर देंगे। तो हिट कहाँ पे आएगा? मेरा लोड बैलेंसर पे आएगा, लोड बैलेंसर मेरे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट आई डू नॉट नो कि यार मेरे को 3 EC2 इंस्टेंस में काम होंगे कि नहीं होंगे, कल के दिन और ट्रैफिक मेरा बढ़ गया एंड ऑटोमेटिकली इट शुड स्केल अप। तो फिर हम लोग एक ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है AWS में, जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं जनरली। मार्केट में वर्टिकल स्केलिंग भी इज आल्सो पॉसिबल, बट वी जनरली डू नॉट रिकमेंड कस्टमर टू गो अहेड विद योर वर्टिकल स्केलिंग। सो देयर इज टू स्केलिंग, एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है ना कि सपोज मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है, ये T2 माइक्रो का है, T2 माइक्रो का एक EC2 इंस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं कि ये EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन को हम बढ़ा दें, अगर T2 माइक्रो से T2 मीडियम कर दे या T2 स्मॉल कर दे, सपोज यहाँ पे 1 VCPU 1 GB का मेमोरी है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम सी दो काम हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये मेरा एप्लीकेशन मेरा कस्टमर को सर्व हो, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन को ही बढ़ा सकते हैं। हम T2 माइक्रो से इसको T2 मीडियम कर दें या फिर T2 लार्ज कर दें, तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। फ्रॉम 1 VCPU इट विल बी चेंजिंग टू 2 और 4 VCPU। तो जैसे VCPU में चेंजेस होगा, मेमोरी में चेंजेस होगा, इट विल बी एबल टू सर्व लॉट्स ऑफ कस्टमर अगेन। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल और EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको लोड बैलेंसर के पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम लोग हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल स्केल। बट यहाँ पे जो सर्वर्स है इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, पहले ये T2 माइक्रो था, अब ये T2 मीडियम बन गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वर्टिकल स्केल कर। So this is called as a vertical scaling and this is called as a horizontal scaling. तो मार्केट में we do into industry we generally go ahead with your horizontal scaling, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस वगैरह क्रिएट कर लेते, ओके? बट यहाँ पे देखो जिस जिस कंटेनर का मेरे को जरूरत है, जिस एप्लीकेशन का, जिस माइक्रो सर्विसेज का को स्केल करने का जरूरत है, आई वांट टू स्केल दैट ओनली। हाउ कैन वी डू दैट? ओके, तो हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स है, सपोज एट अ टाइम मेरे को फी पेमेंट में मल्टीपल और कंटेनर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या होता था ना, ये जो डिप्लॉयमेंट होता था, स्केलिंग जो हम लोग करते थे, इट यूज्ड टू टेक टाइम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, AWS क्लेम्स कि इमीडिएटली स्पिन अप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बट यू नो वी हैव सीन इनटू द रियल टाइम एटलीस्ट 5 मिनट्स तो लगेंगे इन लोग। सो यहाँ पे इश्यूज है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर स्पिनिंग अप और स्केलिंग दिस माइक्रो सर्विसेज, इमीडिएटली स्केल अप हो जाता है, इमीडिएटली स्केल डाउन हो जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई यू विल बी एबल टू सी कि हॉटस्टार वगैरह में इमीडिएटली, इफ सपोज 1 लाख पीपल 5 लाख पीपल आर वॉचिंग नाउ, अचानक से अगर वो 20 lakhs पे भी चला जाता है लाइव पीपल का काउंट, स्टिल दे आर एबल टू मैनेज दैट। In this recent IPL, we have got around 2.4 or 2.3 crores of traffic. लास्ट के कुछ ओवर में ट्रैफिक विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग, फर्स्ट के कुछ ओवर में ट्रैफिक विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। सो हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिनेरियोस? सो ये सब बेसिकली माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर में ही पॉसिबल है, जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को कंटेनर्स पे डिप्लॉय करेंगे। और अगर मेरे को स्केल अप स्केल डाउन करना है, मेरे को उसको स्केलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का सारा इश्यूज को सॉर्ट करना है, राइट? बेसिकली इन शॉर्टर टर्म इफ आई विल से कि अगर मेरे को मेरे कंटेनर्स को मैनेज करना है, देन वी नीड कुबरनेटिस। तो बेसिकली अगर इसका सिंपल डेफिनेशन को अगर समझा जाए, व्हाट इज कुबरनेटिस? सो कुबरनेटिस इज बेसिकली एन ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल, जो कि मेरे कंटेनर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। मेरे को अभी चाहिए कि नहीं 500 मेरे कंटेनर स्पिन अप हो जाए, तो इमीडिएटली 500 मेरे कंटेनर्स स्पिन अप हो जाना चाहिए। मेरे को अभी डिस्ट्रॉय कर देना है 300 कंटेनर्स, इमीडिएटली 300 कंटेनर्स डिप्लॉय हो जाना चाहिए। अब जनरली आईपीएल में भी दोज हु आर वाचिंग द आईपीएल, उनको पता होगा कि फर्स्ट 5 ओवर्स में ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मिडिल ओवर में थोड़ा सा कम हो सकता है, एंड लास्ट के ओवर में तो हेवी ट्रैफिक। और एक एजम्पशन भी हो सकता है कि फाइनल जब होगा आईपीएल का, उस समय वी कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक्स, राइट? लेकिन बीच में ट्रैफिक नहीं होगा।
So generally, जो दो टीम, those who are very strong team like Chennai and Mumbai is going to play, तब उस दिन traffic का there lots of people will be visiting to Hotstar or Jio Cinema. तो how to handle such kind of scenarios? कैसे हम उसको हैंडल करेंगे? कैसे ये ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाना चाहिए इमीडिएटली जैसे मेरा ट्रैफिक आया, कैसे ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाना चाहिए जैसे मेरा ट्रैफिक गया? सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी माइक्रो सर्विसेज को हम लोग डिप्लॉय करेंगे किस पे, कंटेनर्स पे। अब डॉकर के केस में डॉकर इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू एन प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग कंटेनर्स बना सकते हैं, लेकिन वो कंटेनर्स को मैनेज कौन करेगा? सो दैट मैनेजमेंट इज डन बाय योर कुबरनेटिस। ठीक है, सो कुबरनेटिस इज बेसिकली योर कंटेनर मैनेजमेंट टूल इन अ वेरी सिंपल लेमन टर्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन पे आओ and then try to understand ये क्या बोल रहा है। Kubernetes is an open source orchestration tool, means management tool, you can understand, developed by Google to manage microservices or containerized based application across the distributed cluster of nodes. अब now what is this cluster of nodes? Now what is this? Okay, so ये cluster of nodes पे हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सो Kubernetes जो था इसको बेसिकली कौन डिजाइन किए थे? गूगल वाले लोग डेवलप किए थे। Okay, just try to focus over here. Sorry, let me bring this down. Okay, so what are you saying कि ये जो Kubernetes है ना, इसको जब ये मार्केट में तो 2014 में आया, मार्केट में 2014 में आया, बट Kubernetes को 2003 से ही कौन यूज कर रहे थे? गूगल वाले यूज कर रहे थे। ओके, सो जब लोग Kubernetes के बारे में जानते भी नहीं थे, तब से इसको गूगल यूज कर रहे थे। एंड गूगल क्या कर रहे थे? गूगल का अपना कंटेनराइज बेस्ड सॉल्यूशन था, वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे कि उसको मैनेज करने के लिए दे हैव डेवलप्ड अ टूल व्हिच इज कॉल्ड एज बॉर्ग। ओके, तो बैकएंड का हिस्ट्री समझो पहले। 2003 Kubernetes was launched in 2014, बट गूगल में उनके जो एप्लीकेशंस थे उनको मैनेज करने के लिए, उनके जो कंटेनराइज बेस्ड एप्लीकेशन थे उनको मैनेज करने के लिए गूगल इंटरनली दे हैव डेवलप्ड अ टूल व्हिच इज कॉल्ड एज बॉर्ग। ओके, बॉर्ग को लोग डेवलप किए थे। एंड देन इन 2014 गूगल क्या कर दी? ये बॉर्ग को डोनेट कर दिया। किसको? दे हैव डोनेटेड इट टू योर लिनक्स फाउंडेशन। ओके, गूगल क्या किया? बॉर्ग को 2014 में लिनक्स फाउंडेशन को डोनेट कर दिए एंड इसको बोले कि यू वर्क इनटू दिस पार्ट एंड देन यू कैन कीप दिस एज एन ओपन सोर्स। सो ये लोग क्या किया? गूगल डोनेट कर दिए बॉर्ग को, किसको? लिनक्स फाउंडेशन को। एंड लिनक्स फाउंडेशन का अपना एक सब ऑर्गेनाइजेशन है which is called as your Cloud Native Computing Foundation. Cloud Native Computing Foundation. Okay. So 2003 में गूगल एक टूल बनाए थे बॉर्ग, जो कि वो इंटरनली अपने कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए यूज करते थे। 2014 में गूगल हैज डोनेटेड दिस टू लिनक्स फाउंडेशन एंड उनको बोले कि आप इस पे कुछ चेंजेस करो एंड मेक इट पब्लिकली अवेलेबल, ओपन सोर्स रखो, यू कैन मैनेज दिस, यू कैन टेक द ओनरशिप। ओके, फिर 2014 में लिनक्स फाउंडेशन का सब ऑर्गेनाइजेशन एक है व्हिच इज कॉल्ड एज क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। अब ये क्या किए? ये लोग बॉर्ग पे काम किए एंड देन दे हैव लॉन्च्ड दिस इन 2015 as a name of your Kubernetes. Okay, and इसको ये लोग ओपन सोर्स बनाते। ओके, सो अभी जो भी जितने भी जो भी चीजें अभी Kubernetes पे होते हैं, वो सारा का ओनरशिप किसके पास है? अभी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन के पास, which is basically सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर लिनक्स फाउंडेशन। सो जनरली अब इसको Kubernetes was developed by Google क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्लियर 2003 में जब हमारे पास Kubernetes का कुछ नामो निशान नहीं था, तब भी ये लोग इसको एक्चुअली में डेवलप किए थे अपने एनवायरनमेंट पे जितने भी कंटेनर्स बेस्ड सॉल्यूशन है उनको मैनेज करने के लिए।
देन 2014 में ये लिनक्स फाउंडेशन को दे दिए। 2015 में लिनक्स फाउंडेशन का एक सब ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, इस पे कुछ चेंजेस किया एंड इसको 2015 में एज अ नेम ऑफ कुबरनेटिस लॉन्च कर दिया इनटू मार्केट एंड दे हैव मेड दिस एज एन ओपन सोर्स। ओके, मेकिंग सेंस गाइस टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अभी देखो मार्केट में ना देयर आर एग्जाम्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कुबरनेटिस। एक एग्जाम होता है विच इज कॉल्ड एज CKA, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम। ओके, एंड ये कौन कंडक्ट करवाता है? यही क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन कंडक्ट करवाता है। ओके, एंड इसका फी इज वेरी हाई, बट व्हेन यू विल बी वर्किंग CKA सर्टिफिकेशन कॉस्ट, या फिर मे बी CKA फाउंडेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लिनक्स फाउंडेशन, आई डोंट थिंक सो कि ये है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, देख रहे हो इसका एग्जाम का कॉस्ट कितना है? $395। ओके, एंड दिस इज योर CKA सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो इसका जो सिंबल है ना, ये भी ऐसा क्यों है, ये इसका सिंबल ऐसा क्यों है? ओके, एंड मार्केट में ना इसको हम लोग K8S भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K8S। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है जनरली, देखो ये नाम कहाँ से आया? when you'll see, this will start from K and this will end to S, and in between we have your eight characters, so इसलिए इसको K8S in a standard term लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। इसका एक कुछ इसका एक कुछ रूल है, रूल है इन द सेंस कि देयर वाज सर्टेन रूल जहां पे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट कैरेक्टर और अपना लास्ट कैरेक्टर डालते थे एंड बीच में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते थे उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते थे, इसलिए मार्केट में इसको लोग कुबरनेटिस को K8S भी बोलते हैं। ओके, सो जनरली इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? दिस क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं इसका। ठीक है, अब देखो कुबरनेटिस के बारे हाँ, हम उसका थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे थे कि जनरली व्हेन यू विल सी कि ये क्या करता है, बेसिकली इट इज योर कंटेनराइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया है, राइट? तो जनरली देखो क्या होता है, अभी डॉकर का अगर हम लोग इफ विल सी डॉकर, आई राइट डॉकर। ओके, इफ विल सी डॉकर का जो लोगो है, हाउ व्हाट इट रिजेंबल्स। सो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक मल्टीपल यहाँ पे एक मेरे पास शिप टाइप का है एंड देन वी हैव योर मल्टीपल कंटेनर्स ऑन टू दैट। ओके, अभी सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये EC2 इंस्टेंसेस है, EC2 इंस्टेंसेस पे हम लोग क्या किए, मल्टीपल कंटेनर्स को डिप्लॉय किए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि एक मेरा शिप है, शिप के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स डिप्लॉयड है एंड वंस यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर लोगो ऑफ कुबरनेटिस, तो जनरली देखो ये जो शिप है, शिप को राइड करने के लिए, चलाने के लिए व्हाट डू वी नीड, मींस हाउ डज इट लुक्स लाइक। अगर हम नॉर्मल टाइप का शिप का, अगर हम शिप मे बी शिप, वाटर शिप, समथिंग लाइक दिस, इफ आई विल राइट वाटर शिप controller, something like this, water boat control, something like this, let me see कुछ मिलता है क्या? So generally water ship control, let me write, नहीं दिख रहा है इसमें, maybe you can search somewhere in Google. So generally ये जो शिप वगैरह होता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए we need a wheel type of thing. I'm not getting here, but generally जब भी एक शिप होता है ना, तो suppose this is a ship, okay, and इसको अगर चलाना है, so we need a system। यहाँ पे ना इसी टाइप का एक आर्किटेक्चर होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं, रोटेट करते हैं इनटू मल्टीपल डायरेक्शन, तब जाकर के ये, सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक शिप को मैनेज कर रहे हैं, एक शिप को चला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो इसलिए इसका जो कुबरनेटिस का डिजाइन, जो आर्किटेक्चर भी बनाया गया है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, बिकॉज डॉकर का इट इज लाइक ए शिप, उसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स हैं, अगर उसको मेरे को मैनेज करना, उसको मेरे को रोटेट करना, मूव करना, कहीं ले जाना है, सो वी हाउ डू वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर रोलर, यू कैन से, जो कि शिप में यूज किए जाते हैं बेसिकली टू मैनेज द शिप।
सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को अगर डॉकर कंटेनर्स वगैरह को मैनेज करने हैं, सो डॉकर का लोगो देखे थे ना कैसा था. Similarly, the logo of your Kubernetes is like that, so that you will be able to manage your container in a better way. Okay, तो ये था कुछ history related to your Kubernetes. So ultimately, if I'll summarize, so what is Kubernetes? So Kubernetes is an open source container management tool, or you can consider it as an orchestration tool, जो कि डेवलप किया गया था अर्लियर बाय गूगल एंड 2014 में इसको लिनक्स फाउंडेशन को डोनेट कर दिया गया. 2015 में लिनक्स फाउंडेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन विच इज योर क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, बॉर्ग पे कुछ चेंजेस किए एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टूल इनटू मार्केट विच इज कॉल्ड एज योर कुबरनेटिस, which is actually used to manage your microservices or containerized based application. अब हम लोग डिटेल्ड में माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी देख लिए कि क्या होता था, प्रॉब्लम क्या था. तो यहाँ पे अगर मेरे को हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन बनाने हैं, सो वी नीड योर एंटायर एप्लीकेशन टू बी ब्रेक्ड इनटू मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, और वो माइक्रो सर्विसेज को, वो एप्लीकेशंस को वी कैन डिप्लॉय इट इनटू योर मल्टीपल स्मॉल कंटेनर्स. एंड अभी जब भी हम उस कंटेनर्स में डिप्लॉय करेंगे एंड कभी मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता है कि नहीं मेरा फी पेमेंट वाला ही सेक्शंस को मेरे को स्केल किया जाए, अदर इज नॉट रिक्वायर्ड. बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को फी पेमेंट वाला पे ही काम करना है, बट यहाँ पे इस मोनोलिथिक बेस में क्या करना होगा, मेरे को सब के लिए एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा. entire thing will be scaled. So this is unnecessary wastage of resources, right? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अटेंडेंस वाला कंटेनर्स को स्केल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फी पेमेंट वाला कंटेनर्स को स्केल कर सकते हैं. सो ऑल दोस फ्लेक्सिबिलिटी विल बी गेटेड. दैट्स द रीजन व्हाई कंपनीज क्या करते हैं, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सॉल्यूशंस पे जाते हैं. एंड अगर उसको हमको डिप्लॉय करना है तो कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, इनटू योर कंटेनर्स. और कंटेनर्स पे अगर हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ओके, इफ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस थिंग्स ऑनटू कंटेनर्स, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, we will need to have certain mechanism by which we will be able to manage these containers. कब स्केल करना है, कब डाउन करना है, कब अवेलेबिलिटी. जैसे मेरा मान लो एक कंटेनर्स में कुछ इश्यू हो गया, मे बी सम इशू, जिसके कारण मेरा कंटेनर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, तो कैसे ऑटोमेटिकली मेरे को उस कंटेनर को रिप्लेस करके एक नया कंटेनर को डिप्लॉय कर देना है. सो ऑल दोज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ योर कुबरनेटिस. ओके, तो धीरे धीरे हम लोग सेटअप करेंगे कुबरनेटिस को, फिर देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड. लेकिन उससे पहले वी विल नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कुबरनेटिस. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड अगर ये सब बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ मच बेटर. अब देखो, हम अपने प्लेलिस्ट में इनटू दिस पर्टिकुलर ऐप यू विल सी आई हैव एडेड अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज डॉकर स्वार्म. तो ये जो कुबरनेटिस है ना, इसी का यू कैन से कॉम्पिटिटर इज डॉकर स्वार्म. तो डॉकर स्वार्म के थ्रू हाउ डू वी मैनेज कंटेनर्स, उसका हम सारा लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए, ऑल्दो दैट इज आउट ऑफ डिस्कशन, बट स्टिल आई हैव पुट दोस थिंग्स ऑनटू योर प्लेलिस्ट. सो यू कैन बेसिकली गो देयर एंड चेक, जिसको भी इंटरेस्ट है सीखने का. ओके, सो अब देखो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं. सो जनरली कुबरनेटिस जो सेटअप करते हैं ना, सो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर जो होता है, इट फॉलोज योर मास्टर एंड स्लेव बेस्ड आर्किटेक्चर. मास्टर स्लेव. तो जनरली क्या होता है कि सपोज करो अब मेरे को कुबरनेटिस सेटअप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक क्लस्टर बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं. सो वी कॉल इट एज अ क्लस्टर. हम इसके बारे डिटेल में अभी पढ़ाएंगे. हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और वो क्लस्टर के अंदर क्या होता है, मेरे पास आई हैव मल्टीपल नोड्स. सो सपोज करो ये हो गया मेरा एक क्लस्टर, और यहाँ पे मेरा ये नोड्स हो गए. तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर नोड, एंड बाकी जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर नोड. सो वर्कर नोड मे बी 1, वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3, वर्कर नोड 4. मेरे पास मल्टीपल वर्कर नोड्स हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे मास्टर स्लेव बेस्ड आर्किटेक्चर को बोलते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, कुबरनेटिस सेटअप करना मतलब कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट वी विल बी सेटिंग अप अ क्लस्टर फॉर यू, कुबरनेटिस क्लस्टर फॉर यू.
ओके जब हम लोग into our curriculum we have kept maybe if this is open so I can show you Splunk DevOps. So if I'll show you, तो यहाँ पे देखो we will be talking about two types of scaling. One is called as pod auto scaler and cluster auto scaler. ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे into the coming classes. Okay, but यहाँ पे समझो कि अगर मान लो मेरे पास Kubernetes setup करने हम बोल रहे हैं, तो I am telling you have to set up your Kubernetes cluster. अब जब भी Kubernetes cluster setup करोगे तो वहां पे मेरे पास एक master node होगा and multiple worker nodes होंगे. अब किसी का एक सवाल हो सकता है कि सर ये मास्टर वर्कर नोड एक क्लस्टर के अंदर आई कैन हैव मल्टीपल मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड ऑल्सो, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक ही नोड बनेगा, उसी में मेरा मास्टर नोड भी हो सकता है एंड वर्कर नोड भी हो सकता है. एक ऐसा भी हो सकता है सेटअप. एक सेटअप ऐसा भी हो सकता है कि एक मेरा मास्टर नोड हो एंड मेरे पास मल्टीपल वर्कर नोड्स हो. एक ऐसा भी सेटअप हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल मास्टर नोड हो एंड मेरे पास मल्टीपल वर्कर नोड्स भी हो. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ऐसा भी पॉसिबल. तो जनरली इनटू इंडस्ट्री, अब देखो जो मिड साइज कंपनी होता है ना, उसके लिए वी यूज्ड टू सेट अप एनवायरनमेंट लाइक दिस. एक मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड. बट किसी को चाहिए कि नहीं मेरे पास हाई अवेलेबल सॉल्यूशन रहे, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेट अप योर मल्टीपल मास्टर नोड ओवर हियर. तो कल के दिनों सपोज करो मेरा अगर एक मास्टर नोड फेल भी हुआ तो मेरे को रिस्पॉन्स दूसरे मास्टर नोड से भी मिल जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज योर हाईली अवेलेबल सॉल्यूशन. ओके तो हम लोग जनरली एक मास्टर नोड मल्टीपल वर्कर नोड पे जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एंटरप्राइज क्लाइंट जिसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे वी कैन हैव मल्टीपल मास्टर नोड्स विद मल्टीपल योर वर्कर नोड्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग क्लस्टर एक सेटअप करेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक मास्टर नोड और सपोज हम दो वर्कर नोड लेके चलो. अब ये मास्टर नोड दिस विल बी कनेक्टेड विथ योर वर्कर नोड्स. अब मास्टर नोड का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको देने हैं, मेरे को इंस्ट्रक्शंस देने की यार मेरे को 5 कंटेनर चाहिए. क्या चाहिए, मेरे को 5 कंटेनर चाहिए. तब ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है आई विल गिव यू 5 कंटेनर्स. अब 5 कंटेनर्स ये यहाँ पे डायरेक्टली आकर के वर्कर नोड पे नहीं बनाएंगे, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे मास्टर नोड को, मास्टर नोड से इंस्ट्रक्शन जाएगा वर्कर नोड में एंड यहाँ पे मेरे पास कंटेनर्स बनेंगे एंड दैट टू इनटू अ पॉड. हम आएंगे उस पे भी धीरे धीरे. हम खाली एक हाई लेवल ओवरव्यू बता रहे हैं. ओवरव्यू इज लाइक कि वी विल बी हैविंग अ क्लस्टर और ये क्लस्टर के अंदर वी विल बी हैविंग योर मल्टीपल नोड्स. सो हमारा हायरार्की क्या हुआ, मेरे पास पहले क्लस्टर हुआ एंड देन फिर मेरे पास आएंगे मल्टीपल नोड्स. एंड ये नोड्स क्या क्या हो सकते हैं, मेरे पास वर्कर नोड हो सकते हैं, मास्टर नोड हो सकते हैं. सो मास्टर नोड इज द कंट्रोलिंग नोड, जहां पे जिससे मेरा सारी चीजें कंट्रोल हो रहा है. ओके किसमें मेरे को पोर्ट्स, किसमें मेरे को कंटेनर्स बनने हैं, किसमें मेरे को कंटेनर्स को स्केल डाउन करने, स्केल अप करने हैं, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर इनसाइड योर वर्कर नोड. ठीक है, और कंट्रोल कहां से होगा, इनटू फ्रॉम योर मास्टर नोड. अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर नोड, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर नोड, ये सब को थोड़ा सा डिटेल में लेट अस ट्राई टू डिस्कस. ठीक है, आई विल ओपन माय पेन ताकि आई विल बी एबल टू ड्रॉ दैट इन अ बेटर वे. तो चलो अभी थोड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर नोड और ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर. तो सपोज दिस इज माय मास्टर नोड और हम क्या किए, दो वर्कर नोड बना. सो दिस इज माय वर्कर नोड 1, okay, and this is my worker node 2. Okay, तो let me write it. तो ये है मेरा मास्टर नोड, okay, and this is my worker node 1 and this is my worker node 2. ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ मेरा मास्टर नोड वर्कर नोड क्या क्या हो. सो कंपोनेंट्स में आते हैं हम लोग. तो सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एपीआई सर्वर. उसके बाद मेरे पास होते हैं कंट्रोलर्स, आई हैव योर शेड्यूलर्स एंड मेरे पास एक डेटाबेस होता है etcd डेटाबेस जिसको बोलते हैं. एवरीथिंग इज ओवर. तो अब जनरली क्या होता है, दिस लेट मी राइट इट. तो ये क्या होते हैं, मेरे पास एक होते हैं एपीआई सर्वर. ठीक है, एक को हम बोलते हैं कंट्रोलर,
और एक होता है मेरा शेड्यूलर, जिसको हम लोग क्यूब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ओके, क्यूब शेड्यूलर। और एक होता है हमारा ETCD डेटाबेस। ओके, अच्छे से समझो अभी हम क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले, दिस ETCD database will be connected to your API server. Set. Okay, this. So ये API server will be connected to your ETCD database. ठीक है? And not API server only. सब कुछ मेरा सब ETCD database नहीं, बाकी सब कुछ भी मेरा API server के साथ connected रहेगा। Similarly, मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, but you'll be able to understand. थोड़ा सा पेशेंस रखो, I'll make you understand. यहाँ पे जो भी मेरा वर्कर नोड्स होंगे, इसमें भी मेरे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? सो दिस विल बी, यहाँ पे एक क्यूबलेट होगा, क्यूब प्रॉक्सी होगा, कंटेनर इंजन होगा, ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पॉड्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास क्या होंगे? आई विल बी हैविंग क्यूबलेट, आई विल बी हैविंग क्यूब प्रॉक्सी, आई विल बी हैविंग योर डॉकर इंजन, एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होगा मल्टीपल पॉड्स। सो अभी हम इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। वी विल बी हैविंग योर क्यूब प्रॉक्सी, then we have your kubelet, then we have your container engine, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास होगा क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर इंजन, ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज पॉड्स, ठीक है। एंड ये पॉड के अंदर आई कैन हैव योर मल्टीपल कंटेनर्स। क्या हो सकते हैं मेरे पास? मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। मेरे पास एक कंटेनर जनरली हम लोग रखते हैं। आई विल टेल यू व्हाई डू वी कीप दैट, ठीक है। ओके, चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी मेरे पास क्या है, हम क्या बोले, ये जो मेरा एपीआई सर्वर है, दिस विल बी योर मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी ये इसका कनेक्शन किसके साथ है? ETCD डेटाबेस के साथ है। कंट्रोलर का कनेक्शन मेरा इसके पास है। एपीआई सर्वर इज अगेन मींस कनेक्टेड विद योर कंट्रोलर। क्यूब शेड्यूलर भी कनेक्टेड है, ओके, एंड देन दिस एंटायर सिस्टम, क्यूब प्रॉक्सी भी कनेक्टेड है, क्यूबलेट भी कनेक्टेड है, and here also your cube proxy and kubelet is connected. अब सपोज करो क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन चार चीजें हैं, जैसे कि एक मास्टर नोड क्या है, वर्कर नोड क्या है, दैट यू गाइज नो नाउ। तो जब भी हम लोग करते हैं, एंड दिस एंटायर इज वन क्लस्टर, ये मेरा एक पूरा एक क्लस्टर है। दिस इज, आई एम कॉलिंग इट इज अ क्लस्टर 1, सपोज CL1। सो क्लस्टर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी यूज्ड टू हैव योर मास्टर नोड, वी यूज्ड टू हैव योर वर्कर। अब ये मास्टर नोड का कुछ कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे एपीआई सर्वर, क्यूब शेड्यूलर, कंट्रोलर, ETCD डेटाबेस, एंड देन वी हैव योर क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर इंजन, ऑल दोस स्टफ्स, ठीक है। तो जनरली सपोज करो अभी मेरे को क्या करना है ना, आई एम फायरिंग सर्टेन कमांड्स कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को 5 कंटेनर चाहिए, मेरे को 5 कंटेनर सपोज फी पेमेंट वाला अभी डिप्लॉय कर दो इमीडिएटली। सपोज आई हैव फायर्ड सर्टेन कमांड। तो अब ये जो कमांड है, ये इंस्ट्रक्शन किसको जाएगा? इट विल गो टू योर एपीआई सर्वर। मतलब
कहीं से भी कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, यू नीड टू गो थ्रू योर एपीआई सर्वर ओनली। ओके, तो मेरे को अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि मेरे को फी का 5 कंटेनर डिप्लॉय करके दे दो, तो ये इंस्ट्रक्शन किसको गया? एपीआई सर्वर को गया। अभी कंटेनर्स डिप्लॉय कहाँ पे होंगे? इनटू पॉड्स। सो पॉड्स कुछ नहीं है, एक लॉजिकल बाउंड्री यू कैन अंडरस्टैंड, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल कंटेनर्स को डिप्लॉय करके रख सकते हैं। इनटू इंडस्ट्री हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं। why don't we go ahead with the multiple containers? क्योंकि ये जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये दे आर वेरी टाइटली कपल्ड। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर एक कंटेनर, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर अगर गड़बड़ हो गए, एक कंटेनर के साथ कुछ इश्यू हो गया, तो वो सारे कंटेनर को ले डूबे। इट विल बी लाइक एवरी कंटेनर्स इनटू दैट पॉड विल बी गॉन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हम बोले कि यार मेरे को 5 कंटेनर्स डिप्लॉय करके दो, तो अब ये क्या कहाँ जाएगा? इंस्ट्रक्शन टू योर एपीआई सर्वर। अब एपीआई सर्वर क्या बोलेगा कि ठीक है 5 कंटेनर हमको डिप्लॉय करना है, इंस्ट्रक्शन इसके पास आ गया। अब एपीआई सर्वर इंस्ट्रक्शंस को दे देगा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर विल चेक कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ एलोकेटेड है, कहाँ पे है, क्या है ये, into pods whether I will be able to deploy my 5 containers or not। अभी वहां पे desired कंटेनर का कैपेसिटी कितना है, एंड व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी। सो मेरा अगर वहां पे 10 कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड अगर मेरे को 5 कंटेनर डिप्लॉय करने बोला गया है, एंड यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे 3 ही डिप्लॉयड है, तो और 5 हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो अब ये कंट्रोलर क्या करेगा? ये बेसिकली सारा चीजें को कंट्रोल करेगा। एपीआई सर्वर को इंस्ट्रक्शन किया, एपीआई सर्वर कंट्रोलर को बोल दिया, कंट्रोलर क्या करेगा? अब कंट्रोलर को थोड़ी ऐसी पता चल जाएगा कि ओके ठीक है इसका डिजायर्ड कैपेसिटी है 10, एक्चुअल में इसके पास अभी 3 ही कंटेनर्स हैं, तो आई विल बी एबल टू डिप्लॉय 5 मोर कंटेनर्स। अब ये कंट्रोलर को भी तो कहीं से इंस्ट्रक्शन चाहिए, राइट? किसका? ये वर्कर नोड्स का इंस्ट्रक्शंस। सो ये इंस्ट्रक्शंस इसको कहां से मिलते हैं? फ्रॉम योर ईटीसीडी डेटाबेस। अब ये etcd database I can put it into your master node also। I can keep it onto some different environment also, network के different network के अंदर रख करके हम I can set up a connection also। But generally अभी PaaS based solution आ गया है, तो we generally don't have to worry about this entire stuffs। But जहां पर कहीं पर अगर scratch से you have to set up your Kubernetes cluster, तो वहां पे मेरे को ये सब चीजें ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या क्या पोर्ट्स को अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, ऑल दोस थिंग्स विल बी स्टडिंग इन टुमारोज क्लास। आज का बेसिकली इट विल बी अ थ्योरेटिकल सेक्शन हो। अभी देखो हम क्या बोले कि जैसे 5 कंटेनर्स मेरे को डिप्लॉय करना है, फी का 5 कंटेनर्स डिप्लॉय करना है, इंस्ट्रक्शन किया एपीआई सर्वर को। एपीआई सर्वर किसको बोला? कंट्रोलर को बोला। कंट्रोलर इज गोइंग टू कंट्रोल चेक कि मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी कितना है। तो अब वो चेक कर रहा है कि मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ का 10 है, और एक्चुअल में मेरे को यहाँ पे 3 ही कंटेनर्स डिप्लॉयड है, तब मतलब कि वी कैन डिप्लॉय इट, राइट। तो और 5 कंटेनर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट ये कंट्रोलर क्या, इसको कहाँ से पता चलेगा? सो ऑल दोस इंफॉर्मेशन इट विल बी गेटिंग फ्रॉम योर etcd डेटाबेस। तो डायरेक्टली क्या कंट्रोलर etcd डेटाबेस से बात कर लेगा? नो, इट विल गो वाया योर एपीआई सर्वर। सो इट इज गोइंग टू फॉलो सर्टेन हायरार्की। सो जनरली जब हम लोग छोटे थे, so if suppose if we want to get something, suppose मेरे को अब मोबाइल फोन लेना है, so we directly don't talk to our father, हम लोग मम्मी के थ्रू जाते। we used to say okay I need, so मम्मी फिर पापा को बोलती थी, and then we used to get a phone। so like that used to happen। similarly when you will be working into an industry, तब यहाँ पे ना suppose you are a developer or you are an AWS architect, so you are a developer, so if you are working for this client, okay, ये क्लाइंट का इंफॉर्मेशन इज केप्ट ओवर हियर, एंड इसका कोई ऑन साइट कोऑर्डिनेटर है, दिस इज ऑन साइट कोऑर्डिनेटर ओसी। सो अब हम डायरेक्टली डेवलपर, बीइंग अ डेवलपर आई कैन नॉट गो एंड टॉक टू ऑन साइट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली, नो, हमको अपने मैनेजर के थ्रू होकर के जाना। सो आई विल बी टेलिंग टू माय मैनेजर विल बी कनेक्टिंग टू दिस, फिर ये एपीआई सर्वर को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर हम कंट्रोलर, ये एपीआई सर्वर कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन दे देगा। सो अभी देखो क्या हुआ, जैसे 5 कंटेनर डिप्लॉय करने थे, एपीआई सर्वर को इंस्ट्रक्शन किया, ये कंट्रोलर को बोला, कंट्रोलर चेक कर लिया, इसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आया? etcd डेटाबेस से आया, एंड इट हैज चेक, एंड इट हैज नाउ अंडरस्टूड कि ओके ठीक है आई कैन डिप्लॉय 5 कंटेनर्स। अब ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगा? एपीआई सर्वर को जाएगा। अब एपीआई सर्वर क्या करेगा? ये क्यूब शेड्यूलर को दे देगा, एंड वर्क ऑफ क्यूब शेड्यूलर इज टू डिप्लॉय द रिसोर्सेस। क्या करेगा? क्यूब शेड्यूलर ही डिप्लॉय करेगा रिसोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर मान लो ये मेरे पास मास्टर नोड है, अब मास्टर नोड में आई एम सेइंग दैट कि ये etcd डेटाबेस के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेंगे,
अब ये ATCD डेटाबेस को इन्फॉर्मेशन कौन देगा कि मेरे के पास कितने कंटेनर्स है, कितने पोर्ट्स रनिंग है. सो ऑल दोस थिंग्स विल बी गिवन बाय योर क्यूबलेट. ये क्यूबलेट इन्फॉर्मेशन देगा किसको, एपीआई सर्वर को. एपीआई सर्वर से ये कहाँ पे चला जाएगा, डेटाबेस पे चला जाएगा. तो यहाँ पे मेरा ये जो पॉड्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेनर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड योर एटीसीडी डेटाबेस. ओके, तो अभी हम लोग क्या किए, अब क्यूब शेड्यूलर का काम क्या है. क्यूब शेड्यूलर बेसिकली एक्शन लेता है. इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिप्लॉय द रिसोर्सेस. अब किस में डिप्लॉय करेगा, ये देखेगा पॉड 1 में डिप्लॉय करना है कि पॉड 2 में डिप्लॉय करना है, किस में खाली है, किस में क्या है. सो ऑल दोस थिंग्स इट इज गोइंग टू शेड्यूल. ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वर्कर नोड. अब वर्कर नोड पे जैसे मेरे को पता चल गया कि ओके नाउ दिस 5 कंटेनर्स इज गोइंग टू गेट डिप्लॉयड. तो सपोज एक कंटेनर मेरा पॉड 1 में डिप्लॉय हुआ, दूसरा पॉड 2 में, पॉड 3, पॉड 4, पॉड 5, ऐसे करके 5 और पॉड्स क्रिएट बैकएंड. ओके, नाउ अब ये एक पोर्ट और दूसरा पोर्ट के बीच में नेटवर्किंग क्या होगा, हाउ दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट. सो ऑल दोस थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय योर क्यूब प्रॉक्सी. किसके थ्रू हैंडल होगा, क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू. अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे वी हैव योर क्यूबलेट, वी हैव योर कंटेनर इंजन. So basically we are using your Docker over here. We can use containerd, we can use Rocket. There are n number of containerized based solution available into our market. You can basically choose any. So Kubernetes basically बोलता है, see we have a Docker Swarm as well, right? वो Docker का ही प्रोडक्ट है खुद, जो कि कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए है. अब Docker Swarm के साथ एक इशू है. इशू ये है कि it is basically able to handle your only Docker based environment. अब डॉकर इंजन के थ्रू जो भी कंटेनर्स हम लोग बनाएंगे, इट इज गोइंग टू मैनेज ओनली दैट. बट यहाँ पे कुबरनेटिस के साथ वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी. अब हम रॉकेट के साथ भी जा सकते हैं, कंटेनर के भी साथ जा सकते हैं. कोई भी डॉकर, कोई भी मेरा इंजन हो, कंटेनर इंजन हो, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पे मेरे पास कंटेनर इंजन इज योर डॉकर. तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं पॉड्स, उसके अंदर हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं. वी कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स इनसाइड इट, but we generally keep only a single container, because these containers which is kept inside your this particular pods, these are basically tightly coupled. So containers tightly coupled होंगे उसके अंदर, तो मतलब एक अगर मेरा कंटेनर चला गया तो दूसरा कंटेनर भी मेरा चला जाएगा. So that's the reason why we generally keep it inside your pod. अब जनरली क्या होता है ना, हर एक पॉड को, यहाँ पे कंटेनर्स को हम लोग आईपी नहीं देते, यहाँ पे हम लोग पॉड्स को आईपी देते हैं. किसको देते हैं, पॉड्स को आईपी देते हैं. अब ये क्यूब प्रॉक्सी का काम है. ओके, क्यूब प्रॉक्सी का काम है इसके नेटवर्किंग को देखना, पॉड्स के नेटवर्किंग को देखना, कौन किससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कौन किससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ऑल दोस थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय योर क्यूब प्रॉक्सी. अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाई डू वी जनरली नीड पॉड्स. जब मेरे को कंटेनर्स ही बनाने हैं तो आई कैन डायरेक्टली क्रिएट कंटेनर्स. अब मेरे को पॉड चाहिए, उसके अंदर एक कंटेनर बनाने हैं, राइट. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो जनरली देखो, अब मास्टर नोड, सॉरी, जब भी कुबरनेटिस का बात होता है तो कुबरनेटिस इज बेसिकली योर अ टूल जहां पे हम लोग मल्टीपल कंटेनर इंजन को ला सकते हैं. अब मल्टीपल कंटेनर इंजन को लाएंगे तो सपोज यहाँ पे भी डॉकर के थ्रू बना रहे हैं, तो मेरे को उसके लिए अलग स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा. मेरे को अगर मेरे को अगर कंटेनर डी के थ्रू हम लोग अगर डिप्लॉय कर रहे कंटेनर्स, तो उसके लिए मेरे को अलग स्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे. तो कुबरनेटिस वाले बोले भाई मेरे को उतना टेंशन नहीं चाहिए, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट अ कंटेनर इंजन ओवर हियर. आप कुछ भी यूज करो एंड इसके थ्रू आप डिप्लॉयमेंट करो, कंटेनर्स बनाओ. कंटेनर्स कहाँ बनाओगे, आप मेरा पॉड्स के अंदर बनाओ, दैट्स इट. एंड हम कंट्रोल जो करेंगे पॉड्स को करेंगे, ना कि आपके कंटेनर को करेंगे. तो यहाँ पे अगर कंटेनर ये किसी भी इंजन को यूज करके बनाए, आइदर रॉकेट, आइदर योर कंटेनर डी और डॉकर, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विथ योर पॉड्स. तो ये पॉड्स से कम्युनिकेट करते हैं. ओके, सो डॉकर इंजन कुछ भी बनाओ यहाँ पे कंटेनर, नो प्रॉब्लम, कोई भी यूज करो, बट कुबरनेटिस विल बी कम्युनिकेटिंग विथ योर पॉड्स ओनली. ओके, अब देखो हम फिर से एक बार समराइज कर दे रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं. सो अगर मेरे को क्या करना है कि 5 कंटेनर्स डिप्लॉय करने हैं, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू एपीआई सर्वर. एपीआई सर्वर कंट्रोलर को भेजेगा, कंट्रोलर चेक करेगा एटीसीडी डेटाबेस से कि भाई मेरे पास क्या उतने डिजायर्ड कैपेसिटी हैं, वहां पे हम लोग उतने डिप्लॉय कर सकते हैं. एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू डिजायर्ड कैपेसिटी अगर हो जाता है तो दैट इज इट, आगे हम कुछ और डिप्लॉय नहीं कर सकते. बट यहाँ पे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को और 5 कंटेनर चाहिए और वहां पे 5 का जगह है. सो कंट्रोलर इज गोइंग टू
गिव द इंस्ट्रक्शन, ओके नाउ वी कैन डिप्लॉय इट, बट ये डिप्लॉय नहीं करेगा। बट इसको इन्फॉर्मेशन कहां से मिल रहा है? एटीसीडी डेटाबेस से। एटीसीडी डेटाबेस को कहां से मिल रहा है? क्यूबलेट से। ओके, बट अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि ओके वी कैन डिप्लॉय इट, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जाता है क्यूब शेड्यूलर को। अब क्यूब शेड्यूलर इट शेड्यूल्स द जॉब कि कौन से पोर्ट पे मेरा कहां पे कंटेनर्स डिप्लॉय होगा। वंस इट इज फाइनलाइज ओके कि ये पोर्ट 1 में डिप्लॉय कर दो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कंटेनर्स डिप्लॉय हो गया। अब ये जो कंटेनर्स डिप्लॉय होगा, ये पोर्ट को कुछ आईपी मिलेगा, उसके बीच में नेटवर्किंग सेटअप होगा, मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, नेटवर्किंग सेटअप होगा। सो ऑल दोस नेटवर्किंग, all those IP configuration, everything will be done by your kube proxy. Okay, so generally हम लोग जो भी काम करेंगे वो मास्टर नोड पे करेंगे, and ये मास्टर नोड is actually going to control my all worker nodes. अब जनरली क्या होता है कि जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो my API सर्वर, तो हम लोग एक रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक फाइल बनाते हैं, एंड वो फाइल में वी राइट इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस हम भेजते हैं किसको? एपीआई सर्वर को। और जो फाइल में हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट फाइल। अभी जब क्लासेस आगे होगा ना, सो दे विल बी टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट फाइल। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना, मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है। सो मैनिफेस्ट फाइल में ही हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, एंड वो इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देते हैं to my master node, and based on that instruction the containers, everything is controlled inside your worker node. तो मैनिफेस्ट फाइल को लिखने का जो टेक्निक होता है, हम लोग इसको जेसन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट इनटू योर YML फॉर्मेट। इंडस्ट्री में वी जनरली गो अहेड विथ योर YML फॉर्मेट। तो जनरली क्या बोलेंगे, अभी व्हेन यू आर गोइंग टू सेट अप दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इनटू AWS, हम लोग AWS में स्क्रैच से कैसे सेटअप कर सकते हैं? तो हम लोग 3 सर्वर ले सकते हैं। एक को वी विल बी ट्रीटिंग एज अ मास्टर नोड, 2 को वी विल बी ट्रीटिंग एज अ वर्कर नोड। अब ये मास्टर नोड, वर्कर नोड, ये क्लस्टर सेटअप कैसे करेंगे? सो जनरली इन मार्केट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्यूब ADM. सो क्यूब ADM के थ्रू वी विल बी एबल टू सेट अप दिस मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। हम लोग सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, there are various other things, packages we need to install. क्या क्या हमको मास्टर नोड में इंस्टॉल करना है, क्या वर्कर नोड में इंस्टॉल करना है, कैसे हम मास्टर नोड को वर्कर नोड के साथ कनेक्ट करेंगे, व्हाट आर द डिपेंडेंसीज, कौन कौन से पोर्ट्स को अलाउ करने हैं, कौन कौन से पोर्ट्स को ब्लॉक करने हैं। स्वैप का कॉन्सेप्ट होता है, स्वैप को मेरे को ऑफ करके चलना पड़ता है, फायरवॉल को मेरे को ऑफ करके चलना पड़ता है। तो ऑल दोस थिंग्स विल बी रीडिंग इन टुमारोज क्लास। ओके, अब AWS वाले बोले कि ठीक है, अगर किसी को स्क्रैच से इसको सेटअप करना, नो प्रॉब्लम, आप अपना मास्टर नोड बना सकते हो, अपना वर्कर नोड बना सकते हो, एंड आप अपना इंस्ट्रक्शंस भेजो, यू कैन राइट अ YML फाइल, एंड वो YML फाइल को आप मास्टर नोड में डालो, यू फायर सम कमांड्स एंड इट इज गोइंग टू डिप्लॉय इनटू योर वर्कर नोड्स। यहाँ पे कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अभी यहाँ पर भी एक चैलेंज था। अब देखो, बार बार मेरे को मैनेज करना, अब देखो कुबरनेटिस का ना हमेशा वर्जन अपग्रेड करते रहना पड़ता है इनटू इंडस्ट्री। When you will be talking about enterprise clients, so enterprise clients क्या बोलते हैं कि मेरे को हमेशा अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करना है। किस पे? अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे। देखो जनरली हम लोग whenever we were working, तो ये लोग क्या करते थे पहले, there were multiple AWS solution जो कि ये लोग पहले यूज करते थे। जैसे जैसे अभी नया नया सोल्यूशन आ गया, they are actually using that. अब देखो, पहले ये लोग they were doing the manual deployment via console. अब टेक्नोलॉजी आया टेराफॉर्म का, तो कंपनीज हैड एडप्टेड टू दोस टेक्नोलॉजी। अब पहले मॉनिटरिंग वगैरह ये लोग करते थे विद द हेल्प ऑफ योर नेगियोस। ओके, बट मार्केट में फिर प्रोमेथियस ग्राफाना आ गया, तो दे हैव शिफ्टेड टू प्रोमेथियस ग्राफाना। ओके, एंड देन फिर जाके अभी डेटाडॉग का मार्केट इज एक्सेप्टिंग, नॉट एवरीवेयर बट इट इज एक्सेप्टिंग। तो फिर वो लोग डेटाडॉग पे जा रहे हैं। फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी हैव सम डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल, फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सम डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट होता है। व्हेन यू विल गो इनटू इंडस्ट्री, तो वहां पे बोलेंगे कि नहीं, हम वी आर वर्किंग इनटू दिस पर्टिकुलर कुबरनेटिस वर्जन्स, एंड जैसे ही कुबरनेटिस का नया वर्जन रिलीज होता है, यू नीड टू अपडेट, डू द मैनुअल अपडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्जन्स। कैसे करते हैं वर्जन अपग्रेड्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे। सो जनरली इसका डॉक्यूमेंटेशन वी नीड टू स्टडी अ लॉट। ओके, अब AWS वाले बोले कि ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप 3 सर्वर ले लो मेरे यहाँ पे, एंड आप 3 सर्वर में मास्टर नोड, वर्कर नोड बना लो, सेटअप कर लो, एंड देन आप मास्टर नोड को कनेक्ट कर लो, उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल लिखो, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे दो, आपके डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट
यहाँ पे फिर AWS वाले बोले ठीक है, मेरे पास हम क्या करते हैं, अपना एक PaaS सॉल्यूशन देंगे आप, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं कि आपको ना ये मास्टर नोड वर्कर नोड ये बनाने का जरूरत नहीं है, आप जाओ सिंपली एक आप एक EC2 इंस्टेंस बना लो, या फिर अपने CLI के थ्रू यू कनेक्ट योर सिस्टम, आप वहां पे एक कमांड फायर करो, आई विल बी डिप्लॉइंग दिस क्लस्टर फॉर यू इनटू योर AWS। आपको कुछ नहीं करना है, खाली कमांड फायर करना है, एंड AWS इज गोइंग टू डिप्लॉय दिस मास्टर नोड वर्कर नोड, इसके बीच का कॉन्फ़िगरेशन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो बैकएंड में सब कुछ करके आपको दे देंगे। जब हम लोग ये सेटअप करेंगे यूजिंग योर क्यूब ADM, बिकॉज देयर कैन बी अ सिनेरियो इनटू इंडस्ट्री जहां पे वो लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरे को AWS का PaaS सॉल्यूशन पे नहीं जाना, आई वांट टू सेटअप माय ओन नोड्स, और हमको मेरे पास ऑलरेडी टीम बैठे हैं जो कि इसको मैनेज कर सकते हैं, आप मेरे को केवल नोड सेटअप करके दे दो, तो यू कैन गो एंड क्रिएट 3 डिफरेंट नोड्स, एंड कैसे वो सेटअप किया जाता है वो हम कल बताएंगे। बट इनटू इंडस्ट्री व्हेन इट इज सेड कि नहीं, मेरे को PaaS सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को ये सब मैनेजमेंट नहीं करना, आई वांट AWS टू मैनेज दिस। जस्ट लाइक जिनको पता होगा AWS में भी वी हैव योर मींस AWS मैनेज सॉल्यूशन फॉर डेटाबेसेस व्हिच इज कॉल्ड एज योर RDS। तो हम लोग पहले क्या करते थे, एक EC2 इंस्टेंस लेते थे, एक मशीन लेते थे, उसमें MySQL वगैरह कॉन्फ़िगर करते थे, एंड देन उसको अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देते थे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ पे चैलेंज क्या होगा, अब जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, उसको ऑटोमेटिक बैकअप लेना, बैकअप का रिटेंशन पॉलिसी सेट करना, अब उस पे कुछ पैच अपडेट्स करने हैं, मेरे को MySQL के कुछ वर्जन्स अपडेट करने हैं, कुछ माइनर वर्जन्स आया है उसको अपडेट करना है, माइनर एंड मेजर वर्जन्स के बारे आई थिंक सूरज माइट हैव सेड यू कि क्या होता है माइनर एंड मेजर वर्जन्स। अगर कुछ माइनर वर्जन्स अपग्रेड करने हैं, so you don't have to take care of all those things, AWS is going to take care for those things, and AWS बोलते हैं हमारे पास AWS का मैनेज डेटाबेस सॉल्यूशन है which is called as your RDS, जहां पे आप जाओ, केवल आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर लो, दैट्स इट, आप बैकएंड में वो सेटअप करके दे दो मेरे को कि हमको क्या क्या करना है, सो ये ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस वगैरह सब कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, AWS वाले बोलते हैं कि आप ये मास्टर नोड वर्कर नोड आप जो मैनुअल बनाओगे, आप इसको मैनुअल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे, इसका बैकएंड का सारा चीजें देखोगे, उससे बढ़िया है कि व्हाट यू डू, यू टेक आवर PaaS सॉल्यूशन जो AWS के पास है व्हिच इज कॉल्ड एज EKS। आप EKS पे आओ, आप अपना क्लस्टर बनाओ, आप वहां पे बोल दो कि आपको कितने मास्टर नोड चाहिए, कितने वर्कर नोड चाहिए, वो बैकएंड में सब स्पिन अप कर देगा, एंड देन यू कैन बेसिकली स्टार्ट वर्किंग ऑन टू योर मैनिफेस्ट फाइल लिखो, दैट्स इट, डन। एंड अभी मैनिफेस्ट फाइल लिखना और भी आसान हो गया है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ ChatGPT, राइट। अभी EKS है सॉल्यूशन किसका, टू योर AWS, बट Azure वाले भी लेकर के आए, एंड Azure हैव योर AKS सॉल्यूशन। अभी हमारा एक Kubernetes का बैच शुरू होने वाला है, मींस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ एंड, देयर वी आर कवरिंग योर AKS पार्ट एज वेल। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, EKS इज योर AWS बेस्ड सॉल्यूशन, AKS है Azure का सॉल्यूशन, PaaS सॉल्यूशन, जहां पे वो खुद मेरे को ये मास्टर नोड वर्कर नोड सेटअप करके दे देगा। सिमिलरली फॉर गूगल वी हैव योर GKE, ओके। सो ये सब PaaS सॉल्यूशन है व्हिच इज यूज्ड फॉर Kubernetes। और मार्केट में इफ यू नो बेसिक्स ऑफ AWS, बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए AWS का, एंड इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इनटू EKS, you can get a job very easily. If you are very strong into Azure fundamentals के लिए थोड़ा ठीक ठाक हो, and if you are very okay with your AKS part, you can get a job. GKE के लिए भी you can get a job. So यहाँ पे this Kubernetes is, since it is very highly demanded, तो फिर मेरे को ये सब PaaS solution भी सीखना जरूरी है। That's the reason why we are covering your EKS over here. Okay. Market में we are getting lots of projects with respect to this. And lots of people don't know how to do this entire setup because this will be totally new, right? तो 2015 में इसको Kubernetes का नाम दिया गया एंड इसको ओपन सोर्स किया गया, एंड लोग इस पे काम करते करते मे बी 3-4 साल लगे ही हों, एंड देन अगेन इट इज नॉट ए वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। कोई मार्केट में 5 years एक्सपीरियंस बंदा Kubernetes में मिलना मुश्किल है, ओके। सो यू हैव टू, एंड जो होंगे भी दे विल बी वेरी लिमिटेड, very limited, but projects तो बहुत है। So if you have this Kubernetes knowledge, you will be valued a lot. Okay. So if I'll summarize what all things have we seen, so we have seen what Kubernetes is, what is the history of Kubernetes, कैसे Kubernetes आया,
एंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कुबरनेटिस. तो हम लोग देखें कि नहीं, कुबरनेटिस से हम लोग कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशंस, कंटेनर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे. ओके, देन हम लोग जो डॉकर में कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन दे रहा है, दैट इज फाइन, बट हु इज गोइंग टू मैनेज दैट. उसमें ऑटो स्केलिंग करवाना है, लोड बैलेंसिंग करवाना है. हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. और मेरे पास माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन है. अब मेरे को माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशंस को मेरे को डिप्लॉय करना है एंड उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है. सो मेरे को डिप्लॉय करना, तो मेरे को कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए. उसको मैनेज करने के लिए आई नीड अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, कंटेनर मैनेजमेंट टूल. तो उसके लिए मेरे को कुबरनेटिस चाहिए. कुबरनेटिस का कंपोनेंट्स के बारे में भी आप सीन, जहां पे हम लोग देखें मास्टर नोड होगा, वर्कर नोड्स होगा. अब मास्टर नोड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंट्रोलर होंगे, क्यूब शेड्यूलर होंगे, एपीआई सर्वर होंगे. ईटीसीडी डेटाबेस को अलग भी रख सकते हैं. वी कैन कीप इट इनटू योर मास्टर नोड आल्सो. हम लोग ये भी देखें कि वी कैन हैव मल्टीपल मास्टर नोड्स, मल्टीपल वर्कर नोड्स. वी कैन हैव अ सिंगल मास्टर नोड, सिंगल वर्कर नोड. तो जनरली अगर हम सिंगल सेटअप करते हैं ना, व्हेन वी यूज्ड टू सेटअप योर सिंगल मास्टर नोड, अगर एक ही में मेरे को मास्टर नोड भी रखना है, वर्कर नोड भी रखना है एक ही इंस्टेंस के अंदर, so that is not recommended into industry, but practically you can do it. Okay, so generally ये सब सेटअप करते हैं हम लोग मिनी क्यूब के थ्रू. So you can write into, maybe I'll share one document or I'll share one video with you all where we have done setup with respect to your mini cube. Okay, so let me just do a cleanup for this. If you'll go into Google and if you do mini cube installation, so इसके लिए basically you need to have your this one virtual box. वहां पे वो सेटअप कर सकते हो. All those instructions you can see over here, कैसे सेटअप करोगे. And once you do mini cube start, and वही सब command cube कटल वगैरह ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे. Then everything will be clear to you. अभी if I'll go ahead and do the deployment using CubeATM, it is not going to finish. Okay, that is a complete day job. So इसके लिए क्या क्या recommendations हैं, what are the things which you will be needing it. तो 2 vCPU, 2 GB, 20 GB फ्री डिस्क, इंटरनेट कनेक्शन और एक वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ये मेरे को चाहिए. आई नीड अ वर्चुअल बॉक्स और VMware फ्यूजन, ये सब चीजें में से कुछ भी चीजें चलेगा. सो वंस यू आर यूजिंग योर वर्चुअल बॉक्स, तो यहाँ पे बाकी सारा इंस्टॉलेशन के स्टेप्स वगैरह बता दिया. ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, ऑल दोस थिंग्स. सो क्या चीज चाहिए, ऑल दोस स्टफ्स. मिनी क्यूब का बाइनरीज, ये सारा चीजें डाउनलोड करके दे देगा. एंड वंस यू डू द सेटअप, इंटायर सेटअप, फिर जाकर के हम लोग यहाँ पे पॉड्स वगैरह को देखेंगे. तो ऑल दोस थिंग्स विल बी एबल टू सी. सो ये डॉक्यूमेंटेशन को इफ यू आर गोइंग टू फॉलो, यू विल बी एबल टू सेट अप योर मिनी क्यूब. Okay, but what I'll do, maybe I have one recorded lectures for this mini cube setup. This is actually used for the development and testing environment only, not into the production environment. So that's the reason why we are not focusing on to this part. Generally, अगर मेरे को ये setup भी नहीं करना है, तो you can come to Google and search for Kubernetes Playground. Yeah, Kubernetes Playground. If you search, you'll get n number of options available over here, जहाँ पे वो लोग setup करके देते हैं. So it is like सब में जा के देखना है, किसी में कुछ they have done some changes और वो पेज अवेलेबल नहीं है. So all those things you can basically explore. So ये Kubernetes Playground वगैरह you can basically check it out and you can start your free trial there and वहाँ पर भी काम कर सकते हो. So it will be like अपने से भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन we can go to any playground and there also we can do it. Okay, so there can be n number of things. अब कौन सा काम करता है, you need to explore that. Okay. So playgrounds, empty environments, empty base environments, कौन सा Kubernetes का कौन सा वर्जन चाहिए. Suppose this version I am selecting, so I will need to do some sign ups and all those stuff, sign in to access the scenario for free. तो हम अगर sign up वगैरह करेंगे, तो maybe I will be able to get the access. Okay, but I don't want to do the sign up over here because I don't need it. Okay, if you want to try, you can go to playground and there you can basically do the sign up and you can try. But हम लोग कल एक वीडियो दे देंगे जहाँ पे मिनी क्यूब कैसे सेटअप करना है. All those things you will be getting in detail. We have followed this particular documentation only and we have done this setup. Similarly, you can also do your setup onto your system, but उसके लिए you will be needing a virtual box to be virtual box installed होना चाहिए. So you'll click on to this part, and then if you go to this, click on to this one,
सो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स एक डाउनलोड करने के लिए दे देगा. सो यू कैन डाउनलोड दिस वर्चुअल बॉक्स होस्ट, ये विंडोज होस्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू install this one, and then उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, all those things are basically discussed into that lecture, and that will take more time, so we don't want to get into that part. तो yeah, this was related to Minikube. अगर मेरे को मल्टीपल नोड्स सेटअप करने हैं, मतलब कि अगर मेरे को मास्टर नोड एक होंगे, मल्टीपल वर्कर नोड्स होंगे, तो वो उसमें क्या होगा, मिनीक्यूब में एक ही नोड पे यू विल बी हैविंग मास्टर नोड आल्सो, वर्कर नोड आल्सो. दैट इज नॉट रिकमेंडेड इन टू इंडस्ट्री. तो हम लोग को अगर मल्टी नोड सेटअप करने हैं, so we generally go ahead with your Cube ADM. Okay, so we will be following this particular documentation to do the setup. Cube ADM install. Let me see. Yeah, so installing Cube ADM, all those stuffs, we will be following up this particular documentation, and we will be doing this entire setup. Okay, कैसे करते हैं, and there will be lots of challenges also. Okay, but we will be fixing all those challenges. Okay, I already have a documentation with respect to this, which I have created on my own based on my experience, and then we will be using that documentation only to do this entire setup. Okay, and फिर ये जो entire setup है, this entire cluster setup which we are actually doing, so ये पूरा whole together will be considered as your single Kubernetes cluster. ये पूरा as a whole will be considered as your single Kubernetes cluster. I can have multiple clusters like this. So generally, अगर मेरे को AWS में PaaS solution चाहिए, where I have to set up this Kubernetes cluster, so we have your EKS. EKS में हम जाएंगे, cluster setup करेंगे, तो backend में वो मेरे से पूछेगा कितने master node चाहिए, worker node चाहिए, master node का configuration क्या होना चाहिए, worker node का configuration क्या होना चाहिए, सारा setup कर दो. जो हम लोग कल सीखेंगे वो AWS में एक झटके में हो जाएगा, बट दैट इज टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम. वो क्लस्टर सेटअप करने के लिए ही केवल आधा घंटा लग जाता है. सो इट इज टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन द बैकएंड, बट इट इज मेकिंग श्योर कि सारा कॉन्फ़िगरेशन करके मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सारा मास्टर नोड वर्कर नोड बन जाएगा. यू हैव टू जस्ट राइट योर मैनिफेस्ट फाइल. कैसे स्केलिंग करेंगे, कैसे डाउन स्केल करेंगे, अप स्केल कैसे करेंगे एप्लीकेशन को, ऑल दोस थिंग्स विद एन हेल्प ऑफ सैंपल एप्लीकेशन वी विल बी शोइंग. ठीक है, एंड हाउ डू वी जनरली डू इनटू इंडस्ट्री, और जो हमारा लर्निंग है फ्रॉम इंडस्ट्री विल बी शेयरिंग दैट विथ यू ऑल. ओके, so hopefully we'll start. So today was all together a complete theoretical session where we have discussed about entire Kubernetes, history of Kubernetes, components of Kubernetes, components of multiple nodes, जहाँ पे हम लोग क्या क्या किए थे, and we will be talking about how can we basically set up this Kubernetes cluster and एक application को कैसे उस पर deploy करते हैं. All those things we are going to learn into the next class, and then फिर we will be talking about some important concepts related to this, and those are very very important, जैसे कि ये config map, kubectl, nodes, pods, service ingress, secrets. These are very 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 important concepts. Okay, वॉल्यूम्स के बारे, persistent वॉल्यूम्स के बारे पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट एंड स्टेटफुल सेट्स के बारे पढ़ेंगे. ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कल हम लोग मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करके सीखेंगे यूजिंग योर Cube ADM, and we'll try to do other stuffs also. ठीक है, so what I will do, I will be putting one video of Minikube setup. So those who are okay with that, they can do the Minikube setup. Otherwise, जिसका previous lectures का labs नहीं हुआ, those who were engaged those part, you can do that lab, and Minikube setup if you are not able to do also, no problem. Although I will be sharing the video, everything you can look into that and you can do. You have the documentation also available, but this is not required actually in industry. But मेरे को कुछ छोटा मोटा टेस्टिंग करना है, तब उसके लिए हम एक क्लस्टर स्पिन अप करने नहीं जाएंगे, या फिर एक I will not be going ahead with a EC2 instance, Cube ADM के थ्रू हम सेटअप नहीं करने जाएंगे. So what I will be doing, I will be basically creating a Minikube setup, और उसको हम स्टॉप करके रखेंगे. जब भी जरूरत पड़ेगा स्टार्ट कर देंगे. एक ही सर्वर पे मास्टर नोड है, वर्कर नोड है. बट जनरली क्या होता है ना, whenever we are also working, so हम लोग एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार करते हैं टू आवर टेस्ट एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि यू नेवर नो ना क्या चैलेंजेस मेरा प्रोडक्शन में आ जाए. अगर हम एक ही नोड को वी आर कंसिडरिंग एज अ मास्टर नोड और वी आर कंसिडरिंग एज अ वर्कर नोड, तो देयर आर चैलेंजेस कि उसके बीच का नेटवर्किंग में सपोज कुछ इश्यूज हुआ होगा, बिकॉज दे आर टुगेदर इनटू अ सेम EC2 इंस्टेंस, यू कैन कंसीडर, राइट. यहाँ पे तो डिफरेंट EC2 इंस्टेंस में रहेंगे, सो यू नेवर नो कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. बट छोटा मोटा टेस्टिंग के लिए
अब मान लो मेरे को अगर एक पाइथन का स्क्रिप्ट को टेस्ट करना है, नॉर्मल सा छोटा सा पाइथन स्क्रिप्ट टेस्ट करना, तो उसके लिए हमको पाईचार्म अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, या मेरे को विजुअल स्टूडियो मेरे को इंस्टॉल करने की क्या जरूरत, आई कैन डायरेक्टली गो टू प्लेग्राउंड, गूगल में आई कैन टाइप कुबरनेटिस प्लेग्राउंड और पाइथन प्लेग्राउंड या पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, वहां पे जाके आई विल बी एबल टू टेस्ट. सिमिलरली यू कैन डू फॉर कुबरनेटिस क्लस्टर आल्सो. Okay, you can go and opt for Google Kubernetes Playground और वहां पे जाके टेस्टिंग कर लो. That's it. Okay, you have to do some signups and you will be able to do. But still, Minikube was a part, so I will be putting that lecture. You can try setting up that. Virtualizations वगैरह को enable करना पड़ता, all those things was discussed into that class. And you can have a look into that, set up करो, and then we will be setting up your multi-node clusters tomorrow. And थोड़ा सा और भी डिटेल में other concepts को हम लोग देखें. Making sense, guys, till this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me stop it.